Hello friends, myself Rasita Pagaria from Aram Junior College. We have started with our third chapter. We were studying about the Machiavelli. In that we studied about the youth, the official, then the work of, he worked as a philosopher, then work of Machiavelli. Right? Today we are going to start with our new topic, that is the views on human nature. Machiavelli discussed at some length about human nature. See, Machiavelli जब वो काम कर रहे थे as a philosopher when he was working, he had some views about the human nature. He gave a very dark picture of human nature. He gave a brief idea, a proper picture, a clear picture about the human nature. He equated it with animal nature, and he compared human nature with animal nature. Human beings are ungrateful and selfish. See, what he said is human beings are ungrateful and they are selfish. Human beings are selfish in nature. See, human nature theory. Human nature theory is as follow. Self-centered. Man is self-centered. He thinks about his own interest rather than the interest of anybody else. Right? वेरी ट्रू ना. हर कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है. एवरीवन थिंक्स ऑफ आवर सेल्फ ओनली. क्या आप दूसरों के बारे में कभी सोचते हो, जल्दी सोचते हो? नहीं, हम दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते जल्दी. हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं. वी लुक अबाउट ओनली फॉर आवर हैप्पीनेस. वी सी हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, बट वी डोंट सी कि इफ़ वी आर डूइंग समथिंग बैड, इफ इट इज़ गुड फॉर अस बट इट इज़ बैड फॉर अदर्स, डू वी थिंक अबाउट देम? नो. वॉट एवर वी फील वी डू दैट. वी डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स. He always cares for himself, right? We care only for ourselves, right? We do only things which are better for us. Do we think of others while doing so? No, we don't think. We always care for ourselves only. He is a greedy and essential creature. A man is a greedy animal and he is a essential creature. See, we know human being is a greedy. अपनी एक इच्छा पूरी हुई कि तुरंत दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है. राइट? एक इच्छा खत्म हुई कि तुरंत दूसरी इच्छा जागृत. लाइक ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रीडी. हाँ, ही इज अ वेरी ग्रीडी एनिमल. ह्यूमन बीइंग ऑलवेज गो फॉर द ग्रीडी थिंग्स एंड ऑल. Same thing has been told here. Machiavelli also told the same thing. Human being is a greedy and sensual creature, like sensual. Like अपने को senses है. We feel happy, we feel sorrow, we are sad, we are angry. These all are our feelings. This is our sensual creature. Next is aggressive. Human beings are aggressive. Everyone is interested to acquire more and not interested in living what he has been once acquired. See, human beings are aggressive. Aggressive यानी सब कुछ चाहिए रहता है उनको, right? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए रहता है. Everyone is interested to acquire more. हर और चाहिए रहता है. अभी जो बहुत पैसे वाला आदमी है वो सोचता है ना, मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा कमाने का नया नया तरीका सोचता है. Those who belong to middle class, what he thinks, even he thinks the same thing. जो गरीब है वो भी सोचता है, यही सोचता है, राइट? हर कोई यही सोचता है ना, जो कितना भी पैसा क्यों ना हो, अपन यही सोचते हैं ना, और पैसा कैसे कमाए हम. सो एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू एक्वायर मोर एंड नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग. कुछ भी अपन छोड़ते नहीं है, राइट? अभी 4 चीज़ें हैं, अपन क्या बोलेंगे, चारों मेरे को चाहिए. अच्छा, एक किसी और के लिए रख दो. ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता. वॉट हैज़ बीन, और अपने पास ऑलरेडी 3 है तो अपन चाहता क्यों ले, छोड़ देते हैं. अपन ऐसे नहीं सोचते, 4 है तो चारों मैं लूँगा. ऐसे ही करते ना अपन. मैन आर ऑलवेज लाइटिंग विथ ईच अदर, देयर बाय क्रिएटिंग कंडीशंस ऑफ एनर्जी. सी, क्या होता है फिर? हमेशा कंडीशंस बुरी होती है. हमेशा वी लुक फॉर द एंग्रीनेस. हमेशा अलग से कंडीशंस बना देते हैं. विकेड. ह्यूमन बीइंग आर ऑलवेज प्रेजेंटेड टू वर्क अगेंस्ट collective interest provided their own interests clash with them. All men are wicked in nature. See, human beings are always being wicked. मतलब wicked here means cruel. Always they are cruel. Always human being is
cruel, right? Human being is always cruel here. He does all the things cruelly. मतलब वो he looks for against the collective interest, provide their own interest clash with them. All men are wicked in nature. See, all human men are wicked in nature. Always they try to do जो खुद के लिए अच्छा है वही अपन ट्राई करते करने के लिए, अपन दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते. Timid. Man is always timid. Being timid, he follows the line of least resistance. जहाँ पे उसको कम से कम रेजिस्ट मिले वो वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं, राइट. मैन इज़ ऑलवेज टिमिड. लाइक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाले आप पे, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ के लिए नहीं नहीं बोला. विल यू बी एबल टू लिव देयर, विल यू बी एबल टू वर्क देयर? नो, नो वन विल बी एबल टू वर्क देयर. सो what always a man wants is he wants the minimum resistance. He wants to follow only well established customs so that he is not opposed by the society. What he wants is he always want to follow जो customs है, जो अच्छे से establish हुए वही उनको follow करना है, और जो society अपोज करे वो customs नहीं चाहिए. See, the best example is live in relationship. पहले live in relationship के लिए कोई agree करता था क्या? नहीं करता था. No one used to agree for this live in relationship. But today society is changing. If you say कि बाबा we are in live in relationship, slowly everyone tries to accept it. But पहले ये thought भी किसी के दिमाग में आना, it was like घर पे भूचाल आया वैसा था ये पहले thought. But आज ऐसा है क्या? नहीं. बहुत से families they are accepting it. So what here is he wants to, here human being wants to follow only well established custom. जो custom पूरे established well established है वही follow करना है. जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके उसको कुछ करना नहीं है, ना ही कुछ फॉलो करने की इच्छा रखते हैं. एक टाइम था इवन द लव पीपल वेर अगेंस्ट दिस लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज एंड ऑल. बट नाउ व्हाट टुडे everyone accepts it. Moving towards the next point, acquisitive. Michelin was of the view that by nature men loves private property more than their kins and kins. Men can forget and forgive murder than patrimony. See, यह मैचेविन और क्या व्यू बोल रहे हैं. मैन हमेशा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अच्छा लगता है उनको, रैदर देन किसी और का कुछ भी हो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको खुद की प्रॉपर्टी वही अच्छी लगती है. और मैन क्या कर सकता है? कैन फॉरगेट एंड फॉरगिव मर्डर देन द पैट्रिमोनी. देन डिसकंटेंट. Every human being always remain unsatisfied and dissatisfied. No human being is content with his position. He is always after more and more power. See, what is happening here? Every human being always remain unsatisfied and dissatisfied. Very true ना. अगर आपको बोलोगे कि यार, if you tell your dad, I need a new mobile. Okay, if he gives new mobile, थोड़े दिन बाद you will start demanding, I need a new bike, right? So you are never satisfied. मतलब ह्यूमन बीन, ये नेचर है ह्यूमन बीन का. ह्यूमन बीन इज़ नेवर सेटिस्फाइड, ही इज़ ऑलवेज अनसेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड. कितना भी मिलो खुशी नहीं है. आज अब बाहरी का मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन ला के दे दिया, अब बोलते हो मेरे को बुलेट चाहिए. बुलेट ख़त्म हुआ कि वापस नया कुछ मांगोगे. सो एवरी ह्यूमन बीन ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड. नो ह्यूमन बीन इज़ कंटेंट विथ हिज पोजीशन. कोई भी ह्यूमन बीन अपनी पोजीशन पे खुश रहता ही नहीं है. अगर आप उसको कंपनी का सीईओ भी बना दो ना तो भी वो खुश नहीं रहेगा. उसको क्या चाहिए? अरे ये सीईओ और कुछ तो अच्छी पोस्ट चाहिए, मेरे को कंपनी का मालिक ही बन जाना है अभी एंड ऑल. सो नो वन इज़ हैप्पी विथ हिज पोजीशन. ही इज़ ऑलवेज आफ्टर मोर एंड मोर पावर. वेरी ट्रू ना. ही इज़ ऑलवेज आफ्टर मोर एंड मोर पावर. वो देखते रहता है और कहाँ से कुछ क्या मिलता है क्या. ही ऑलवेज लुक्स फॉर मोर एंड मोर पावर. Next, seventh point is stupid. Most people are stupid and irrational. See, most people are stupid and irrational, right? Stupid here means they don't use their brain, they don't have their common sense and all. Here the meaning of stupid is they like this. So most people are stupid and irrational. They are always attracted by illusion, good desire. Ultimately, this result is ruin. मतलब किसी के पास अच्छा रहा ना वो तुरंत अट्रैक्ट होते हैं. लाइक अगर आपके फ्रेंड के पास देखा नया मोबाइल है
तो आपको भी तुरंत जरूरत है यार मेरे को भी नया मोबाइल चाहिए, राइट। भले ही आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है, आपका इनकम वैसा नहीं है, बट स्टिल यू नीड दैट, राइट। अल्टीमेटली दिस रिजल्ट इज रूइन। तो भाई क्या होता है, आपके पापा का फैमिली इनकम भी उसका नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, सब रूइन हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स रूइंड। Love for change. Human being has love for novelty and change. The human being have love for novelty and change. Ambitious. By nature, men are ambitious. They desire many things which they cannot get, with the result that they remain dissatisfied and discontent. And what are the outcome of the desire? See, by nature, men are ambitious. सी उनका एम्बिशन रहता है कि मैं ये बनूँ ये करूँ, राइट। दे हैव एम्बिशन ऑफ देयर ओन एंड ऑल, राइट। अभी एम्बिशन है अपना, सी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज हिज ओन एम्बिशन, मेन आर ऑलवेज एम्बिशियस, राइट। दे डिजायर मेनी थिंग्स विच दे कैन नॉट गेट एंड दे रिजल्ट डिससेटिस्फाइड। अभी हमेशा जो उनको चाहिए वो उनको मिलता है नहीं, तो क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है उनमें। Amity and war are the outcome of this desire. See, amity and war are the outcome of the desire. Implication of Machiavelli's view about human nature. State control. Implication of Machiavelli's view about human nature are as follow. State control. One serious implication of Machiavelli's view is that it leads to the conclusion that the state is to check the wicked nature of human beings who are selfish. See, अभी implication क्या हुआ गया, अभी स्टेट कंट्रोल मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी करके ले रहा है, जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है विदाउट लुकिंग एनीबॉडीज बेनिफिट एंड ऑल, तो स्टेट विल चेक द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर सेल्फिश. So yes, state is going to check your behavior. Either you are selfish, either you are doing all your own things properly or not. The state should use maximum force. Here the state is supposed to use the maximum force. Social instinct had nothing to do with it. सोशल इंस्टिंक्ट आपके जो भी सोशल कॉशन है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बट आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी करोगे विथ योर सेल्फिश नेचर एंड ऑल, देन स्टेट विल हैव अ चेक एट इट. नेक्स्ट इज absolute power. Prince is given absolute power. He is not to care for his wicked and selfish people, but govern them with rod without caring or morality, which too is not correct or desirable. See, prince is given, prince को पूरी power है यहाँ पे, and he should not take care of the selfish people, wicked people. जो people बहुत ज़्यादा selfish है, those who are only doing greediness, बहुत ज़्यादा खुद का ही सोच रहे, दूसरों का नहीं सोच रहे, तो प्रिंस उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा, बट ही विल कीप अ वॉच ऑन देम एंड ही विल लुक कि इफ दे डोंट बिहेव करेक्टली और इन अ प्रॉपर मैन दे विल बी पनिश्ड. हियर पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम. द गेम ऑफ पॉलिटिक्स कैन नॉट बी प्लेड विद फेयर हैंड. इट इज़ अ डर्टी गेम विच इज़ नॉट वेरी वेल्दी. सी इवन वी नो पॉलिटिक्स क्या है. आज अपने इंडिया में पॉलिटिक्स तो क्या है, इट इज़ जस्ट अ गेम. एक धंधा बन चुका है पॉलिटिक्स एक, राइट. कोई भी पॉलिटिक्स सही तरीके से नहीं करता, कोई कितना भी ईमानदार हो, जब वो पॉलिटिशियन बन जाता है करप्ट हो ही जाता है. डोंट टेक इट पर्सनली, बट दिस इज द फैक्ट एंड एवरीवन शुड एक्सेप्ट इट. द गेम ऑफ पॉलिटिक्स कैन नॉट बी प्लेड विद फेयर हैंड्स. इट इज़ अ डर्टी गेम. सी व्हाट दे हैव टोल्ड, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी. Politics is not a healthy game. Now, next point is the criticism of human nature. Machiavelli has been criticized for his view about human nature. These are as follow. First is the extreme picture. Human nature is not as bad as he has tried to portray. See, अभी अपन ने देखा कि बाबा मैचिलिन के थॉट्स देखा कि अबाउट उनका ह्यूमन नेचर के बारे में, व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर. देन वी सॉ हिज इम्प्लीकेशन ऑफ व्यू अबाउट द ह्यूमन नेचर. नाउ वी विल लुक एट द क्राइटिसिज्म ऑफ ह्यूमन नेचर. लाइक उसने जो मैचिलिन ने बोला उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है. ड्रॉबैक्स क्या है? एक्सट्रीम पिक्चर. ह्यूमन बीइंग इज नॉट एज बैड एज ही ट्राइड टू पोर्ट्रे.
जैसे मैचिलिन ने क्या बोला ह्यूमन बीइंग के बारे में, ह्यूमन बीइंग इज स्टूपिड, एम्बिशियस है, एग्रेसिव है, सेल्फ सेंटर्ड है, विकेड है, ये सब सही है, बट इससे ये थोड़ी जाहिर होता है कि ह्यूमन बीइंग दे आर नॉट गुड। हाँ, ह्यूमन कुछ कुछ अच्छे भी तो लोग होते हैं। ह्यूमन नेचर इज नॉट एज बैड ही ट्राइड टू पोर्ट्रे। सो व्हाट इज सेइंग हियर, ह्यूमन नेचर को आप जितना बुरा बोल रहे हो उतना बुरा है नहीं, it is not as bad that he has portrayed. Human beings are of course not completely good, but at some time they are not completely bad as well. See, human beings are not completely good, right? Human being क्या है, हम मालूम है कि अच्छे हैं बट बहुत अच्छे नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पूरे बुरे हैं, दे आर कम्प्लीटली बैड एज वेल, ये भी तो नहीं है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, दे आर नॉट कम्प्लीटली बैड ऑल्सो, राइट? दे आर नॉट कम्प्लीटली बैड, कभी कभी वो अच्छे भी तो हो सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन नेचर टेस्टेड। कॉज ऑफ इविल, मैचिलिन हैज़ नो एवर स्टेटेड एज टू वाई द ह्यूमन बीइंग आर बैड एंड सेल्फिश। अभी बैड सेल्फिश ह्यूमन बीइंग बोल रहे, क्यों बैड सेल्फिश बनते हैं वो, उसके पीछे कोई रीज़न भी तो होगा उनका। अगर बिना रीज़न तो कोई सेल्फिश या बैड नहीं होता, right? There has to be some reason for being selfish. If we had some incidents with, अगर उनके साथ कोई इंसिडेंस हुआ होगा तभी वो सेल्फिश बनता होगा ना। विदाउट एनी इंसिडेंस, विदाउट एनी रीजन, ही वोंट बी अ सेल्फिश, राइट? सो मैचिलिन हैज, तो मैचिलिन ने वो कॉज बोला ही नहीं है, वो कॉज ढूंढा ही नहीं है सेल्फिशनेस का उसके। मैचिलिन हैज नो एवर स्टेटेड एज टू वाई द ह्यूमन बीइंग आर बैड एंड सेल्फिश। He has given no rational explanation for that. अभी उसने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, क्यों बुरा है, क्या क्यों रीज़न है ऐसा। Will not force the basis of state. Machilin's view about human nature also lead one to the conclusion that people came in the state due to fear. Machilin's view about human nature lead to एक conclusion में आए कि people state में आए fear की वजह से। Today it is fully established that will not force is the basic of the state. Like कोई स्टेट फोर्स नहीं करेगा निकलने के लिए, आने के लिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी फियर। जो भी करना है सिटीजन को, दे विल डू इट ऑन देयर ओन। इफ दे वांट टू लिव, दे विल लिव इन द स्टेट, इफ दे डोंट वांट टू लिव, दे वोंट लिव। इन दिस रिगार्ड हिज थ्योरी फॉल्स ऑन द ग्राउंड। इस बेसिस पे उनकी थ्योरी गलत साबित होती है। नॉट इनकोरिजिबल, Machilin's is of the view that human beings are incorrigible, but this is not correct. With the help of education and making the people realize about antisocial activities, all human beings can easily be reformed to a great extreme. Machilins क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कभी सही नहीं हो सकते, बट उनका प्रॉपर एडुकेशन दो और उनको सही गलत का फ़र्क समझा के दो, तो इवन दे कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, even they can perform all their tasks easily, even they will realize their responsibility, and everything would go on the smoother way, everything go on smoothly. I think we should end our topic here. Today we studied about the Machilin's view on human nature, we studied its implication of Machilin's view about human nature, and the last point is criticism of human nature. In next lecture we'll study about his view on religious and morality. If you have any doubt, mail me on my mail id. My mail id is rasika.pagaria@arhamedu.in. Meanwhile, read the lesson well so that you can come up with doubts and I'll clear your doubts. Thank you.